Hi, welcome to Unacademy. This is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. You all are welcome to Fastest Finger First, Nature and Significance of Management. Why are you watching this video? Is it helpful to you? How? I tell you, it's going to help you a lot. Reason being, we are going to do multiple choice question in this video with you guys, and we are covering nature and significance of management chapter with you guys. Yeah, business study class 12th. So you will able to revise the entire chapter with me in this video. So you must watch this video, right? अब आपको करना क्या है, साथ साथ में आपको MCQs के साथ साथ में अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना है, राइट? और जब आंसर आपके सामने आएगा तब आपको चेक करना है वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, आपने करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया. तो इट वुड बी ए फैंटास्टिक गेम फॉर यू. बहुत मजा आएगा. यू विल लर्न सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, यू विल रिवाइज सो मेनी थॉट्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, और आपकी रिवीजन साथ साथ हो जाएगी. सो मस्ट वॉच दिस वीडियो, बी विद मी टिल द एंड. Fastest finger first, nature and significance of management. Yeah, this is my referral code. You're watching this. If you join plus courses on Unacademy app, do refer this code Ram Ahuja while joining the course. You will get 10% straightforward discount. Yeah, looking it down now. Join plus courses on Unacademy by using referral code Ram Ahuja. Right, this is my code, right? Let's begin. I'm BCom honors and chartered accountant. I qualified in 2004 as a CA and worked with different industries, the banking sector, government sector, private sector. Yeah, I worked with multinational companies also. So the subject I'm going to teach you, business study, I have closely watched this business. Actually, practically, I have studied the business that I'm presenting before you. Before starting the MCQs or before starting the session, let me introduce you to the plus features. Why you should join the plus courses? Why? The first important point is learning live from the comfort of your home. You can learn from anywhere, wherever you are. आप जंगलों में हैं, आप पहाड़ों पर हैं, आप कहीं पर भी हैं. आप जंगलों में हैं, पहाड़ों पर हैं, कहीं पर भी हैं, आप इसको कहीं से भी लर्न कर सकते हैं. इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए, दैट्स इट. आप कार में भी इसको लर्न कर सकते हैं. तो इट इज फॉर यू. यू कैन लर्न इट एनीवेयर, वेयर एवर यू आर. देन अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. वाओ, द फैंटास्टिक फीचर ऑफ द प्लस कोर्स. Unlimited access. There is no limit. You can watch a video number of times. Once it's not clear, you can watch it twice, thrice, next time. एग्जाम से पहले, एग्जाम्स के बाद, एनी टाइम. एग्जाम से एक रात पहले आपको याद आए टॉपिक मुझे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, यू कैन वॉच द वीडियो, कैन डू द प्रैक्टिस. आपको ये जरूरत नहीं है कि उस समय वो क्लास होगी कि नहीं होगी. यू कैन वॉच इट. एंड दैट टू टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. You have top educators across India teaching you. One from Delhi, one from Mumbai, one from Jharkhand, one from Odisha, one from Bihar, one from Uttarakhand. All the top educators from India are there at one platform, that is Unacademy. अब आप सोचिए, you are the luckiest one that you are getting education from top educators across India. हम लोगों को तो जो टीचर्स मिल गए वो हमारे लिए, आप समझ सकते हैं, वी हैड नो चॉइस. दे वर द परफेक्ट वन फॉर अस. नाउ यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस. Syllabus is covered thoroughly, conceptually, and with regular doubt clearing sessions. Daily basis you have a doubt clearing session, and every fourth class is a doubt clearing session. मीन्स फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास में कुछ डाउट रह गए, और लेट सपोज आपने कोई क्लास मिस कर दी एंड यू वांट नाउ टू ज्वाइन दैट क्लास. आपने उसको रिकॉर्डेड सुन लिया, अब आपके डाउट्स हैं,
So you can ask in the 4th class, that is a doubt clearing session. Then live test series, you have so many tests. You have study material in PDF format, all the study material is available with you. Then there are answer writing sessions for you. And the best part is mentorship and guidance. That means there are so many lectures, so many videos for you from the celebrities, from the top educators, from the top personalities of business, जो आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, आपके करियर काउंसलिंग करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके लिए बेहद जरूरी है from every aspect of your life. So do join the Plus course and use this referral code Ram Ahuja before joining the course, and discount is available for you. Right guys? Daily practice session is there and weekly mock tests are there. So you have a daily mock test paper, weekly mock test, daily practice session. So you are revising, doing every day, yeah, every time. An important announcement for you all guys. There are upcoming batches for 11th Science and Commerce, that too in English medium as well as Hindi medium. Yeah, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन बोथ द कोर्सेज एंड बोथ आर अवेलेबल टू यू, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. एंड दैट टू आप चेंज भी कर सकते हैं ना. इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, यू कैन watch the video in Hindi, you can take a live session in Hindi also, right? So you have top educators across India and teaching you 11th Commerce and 11th Science for Hindi medium as well as English medium both. Then there is a batch for 12th also, 12th Science and Commerce syllabus both, that too in Hindi medium as well as English medium. You have a 12th Science in English medium, Physics by Varun Singh sir, Abha Chaudhary teaching you chemistry, right? Anita teaching you English, Biology by Shalini, and Kunal Chauhan teaching you maths. So you have top educators for science students also, right? You can refer these courses to your friends, colleagues, relatives, your juniors also. Let's suppose you are in science stream, you can refer the commerce courses. If you are in commerce, you can refer the science courses to your friends with different timing options, that too with the different timing options with you guys. Then you have weekend batches also. Wow, 11th Science and Commerce, you have weekend batches also. Let's suppose you are not able to study in the weekdays for any reason, you have any reason, you can study on the weekend, Saturday and Sunday. So every Saturday and Sunday for 11th Science and Commerce there is NCERT weekend batch. In the morning session you are free. Oh great, means Saturday Sunday by investing 2 days also you can learn a lot. These guys, these are for you. Then there is a 12th Science and Commerce NCERT weekend batches also. You can learn 12th Science in Hindi medium as well as in English medium, and same Commerce with English as well as Hindi medium, right? That too weekend batch, right? Saturday Sunday you have to invest 2 days, Saturday and Sunday, and by that you can learn all these things. Great opportunity for you guys, a great opportunity. Yeah. Then there is a revisionary batches. Let's suppose you feel that you have completed the courses, you have revision batches for science and commerce also, right? For 11th class, for 12th class, in Hindi medium as well as English medium, for commerce as well as science, revisionary batches are also there. And practice paper batches are also there for science and commerce students. You can practice for the paper, right? It's for science students also, right? So you can crack your exams for commerce, for science, it's all are available to you. What you have to do is this, what you have to do, follow me on Unacademy app. Just follow me on app, you will get all the notifications of my all the courses, all my special classes, right? You will get notification of every class that is for you. And do refer this code Ram Ahuja while joining Plus courses. A big announcement for you guys, even now we have added Humanities Plus courses also.
political science, history, geography, economics, sociology, psychology, English, PE, IP, Hindi. So you can refer your friends, colleagues, your relatives for joining these courses, right? Let's begin our MCQs. Before that, let me show you our featured educators for Humanities Plus courses. Wow, everybody having so much of experience. Nikki Sinha, Ravi Kashyap, Mayank Agarwal, Priya Jain, Rishabh Jolly, Dheeraj Kumar, Basha Mukherjee, Anjali Yadav. Then you have Dr. Nikita Bhandari, Vinay Bajaj, Meenakshi, Anita. So many educators from all across India to teach you for humanities courses. Guys, be ready. Be ready. Do join the Plus courses and use this referral code Ram Ahuja. You will be benefited a lot. This is my referral code Ram Ahuja. And you want to know the fees? For class 11th and 12th, the subscription amount is 938 rupees per month only. Only 938 rupees, yeah. For unlimited courses, yes. Wow. And you get 10% discount also while joining Plus course. You have to use the referral code Ram Ahuja before joining this course. And if you're in 12th class, the fees is 1125 rupees per month only. That's it. Do join. Let's move to the first MCQ. Problems to be solved, decisions to be made, budgets to be approved, highlights. Management of people, management of work, management of finance और management of operations. कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए फटाफट, जल्दी जल्दी. यस, ताकि आप चेक कर सकें. मन में तो सारे ऑप्शन सारे होंगे और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लोगे हाँ यही आंसर था. इसलिए अभी कमेंट बॉक्स में आंसर डालो ताकि आप वेरीफाई कर सको यू वर राइट और रॉन्ग. Problems to be solved, decisions to be made, budgets to be approved, highlights. What? Management of people, management of work, management of finance and management of operations. बताइए जी. अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं डाला, डालो, ऑप्शन डालो. ए है, बी है, सी है या डी है. नहीं डालोगे तो कंफर्म नहीं होगा. डाल दिया, पक्का लॉक कर दो. चेंज तो नहीं करना, सोच लो एक बार. चलिए आपकी बात मान लेते हैं और करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. अब बताइए आपका सही था या गलत था? वाओ, कमेंट बॉक्स में डालो अपने लिए. वाओ, चीयर अप करो. यस, आई गॉट इट, करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, बजट्स टू बी अप्रूव्ड, हाइलाइट्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क. Identify the industrial category of HCL Enterprises. आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर, ये आपका एनसीईआरटी से है. यस, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल कैटेगरी ऑफ HCL Enterprises. ऑप्शन ए पावर एंड एनर्जी, ऑप्शन बी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल्स एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. डाल रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में आंसर. भाई इसी से तो कंफर्म होगा, नहीं तो पता क्या होगा, आप सोच रहे होंगे बी बी बी. अगर आंसर निकला ए ए ए तो आपको कि नहीं नहीं मैं तो यही सोच रहा था. तो यू वॉन्ट एबल टू श्योर योर सेल्फ. सो गेट योर सेल्फ एश्योर्ड कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था. ईदर यू विन और यू लर्न. रिमेंबर ऑलवेज, ईदर यू विन और यू लर्न. तो हार्डली मैटर्स यार, दोनों सिचुएशन में सक्सेस आपकी है. गिविंग यू टाइम. कमेंट बॉक्स में अभी डालो. डाल दिया? क्या ऑप्शन सोच रहे हो? HCL नाम तो सुना सुना है, पावर सेक्टर में होगा पक्की बात है ना. यही सोच रहे हो ना? ए. अब ये मत पूछना सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया. बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है आपका और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में आपसे. यस,
बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर होगा? पावर एंड एनर्जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आपके लिए आंसर दिखा देते हैं। द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, HCL एंटरप्राइजेस ये जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी है वो IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भैया कितनों का सही था आंसर? चेयर अप। और अगर गलत भी था तो आपने लर्न किया, आज आपने एक नई चीज सीखी। अगेन चेयर अप फॉर योर सेल्फ। यस, यू लर्न समथिंग। गुड, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। It directs the activities of different departments and employees towards achievement of common goals and brings unity in individual efforts. Which coordination characteristic is highlighted here? Would you like to answer without option? नहीं जी नहीं। अच्छा बताइए, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? सोचिए, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप करेक्ट आंसर। डू यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? It's pervasive, yes. Responsibility of all managers, integrates group efforts, continuous process, ensure unity of action, and deliberate function. These are the characteristics of coordination. Characteristics of coordination. तो बता दीजिए ना। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आप। भाई मैंने जो बताई थी उसी में से ऑप्शन आएगी ना, वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। Responsibility of all managers, integrates group efforts, pervasive, unity of action। हाँ जी, बताइए जी बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? डाल दिए कमेंट बॉक्स में? नहीं, कमेंट बॉक्स में डालने से पहले बाकियों की कमेंट पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, ये गलत बात है भाई। बाकी कमेंट मत पढ़ो, अपना कमेंट डालो और चेक करो। दैट विल एश्योर यू ना। It directs the activities of different departments and employees towards achievement of common goals and brings unity in individual efforts. Which coordination characteristic is highlighted here? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सोचिए सोचिए। सोचना तो बनता है भाई, बिना सोचे कैसे काम चलेगा? हम्म, सोचना तो बनता है, बिना सोचे कैसे काम चलेगा? मुझे पता है यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, और मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। यूनिटी ऑफ एक्शन, आपके पास क्लू था, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रिंग्स यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। था कि नहीं था क्लू? आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लू था, जिससे आपका आंसर आ रहा था यूनिटी ऑफ एक्शन। खुश हो रहे हो कि आपने सही आंसर दिया था? हाँ, मैंने कहा ना, इधर यू विन और यू लर्न। दिस टाइम यू विन एंड समवन लर्न। चलिए अच्छी बात है, अगर आप अभी लर्न कर पा रहे हैं तो आगे वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें लर्न कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which two functions do managers at the top level spend more time than managers at lower level of the organization? Your options are staffing and organizing, staffing and planning,
प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ऐसे कौन से दो लेवल होते हैं जिस पर टॉप लेवल मैनेजर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? हाँ जी, बताइए बताइए जल्दी से। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर? इट्स स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड प्लानिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको बताना है करेक्ट आंसर। In which two functions do managers at the top level spend more time than managers at lower level of the organization? Is it staffing and organizing, staffing and planning, planning and organizing, and planning and control? Option A, B, C or D? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए जरा अनलॉक कर देते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये दो ऐसे स्टेप्स होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जिस पर टॉप लेवल सबसे ज्यादा समय बिताता है। जी हाँ, पूरी ऑर्गेनाइजिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल करता है, और सारे रिसोर्सेस को असेंबल करने का जो काम होता है वो भी टॉप लेवल का ही होता है। चाहे वो असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज हो, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क हो, चाहे वो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो, चाहे वो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो दीज आर द टू फंक्शंस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जिस पर टॉप लेवल सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता है। मिल गई नॉलेज? गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। शिव नादर इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? क्या मैं पूछ सकता हूं बिना कंपनी का नाम जाने आपको कंपनी का मालूम है क्या? लेट्स सपोज आई डोंट गिव यू द ऑप्शन। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो वहां तो चॉइस नहीं होगी, क्योंकि सारे 1 मार्कर एमसीक्यूज नहीं होने वाले वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दैट केस अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे आप। घबराइए मत, कोई फायदा नहीं कमेंट में लिखने का ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जाके चेक कर लो। चैलेंज। हाँ जी, तो मान लो मेरी बात को, बता दो शिव नादर इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? बताइए, कमेंट में डालिए, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट को। आई विल चेक योर कमेंट कि आपने क्या कहा और फिर आंसर सही निकला कि नहीं निकला। बताइए जी, आई विल वॉच योर कमेंट। शिव नादर इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? नहीं पता? चलिए मैं आपको चॉइस दे देता हूं। विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड। हाँ सर, रिलायंस तो नहीं है, पक्की बात है, ये तो सबको मालूम होगा। लेकिन विप्रो की बात करें, एचसीएल की बात करें, आईटीसी की बात करें, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा। बताइए जी, शिव नादर इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड। कंफ्यूज आ गए हो भैया, ऐसे ही होता है। अगर कंफ्यूजन नहीं आएगी तो लर्न कैसे करेंगे आप? अब व्यूअर्स बोल रहे हैं अब तो बता दीजिए। चलो बता देते हैं आपको, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आपके पास तो क्लू भी था, अभी क्वेश्चन भी किया था एचसीएल के ऊपर में। हाँ, अगर उसी को ध्यान दे दिया होता तो क्लू बिल्कुल सही फिट बैठता, फिंगर बिल्कुल सही जाकर के रुकती आपकी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, सही जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी। ओ हो। अच्छा हुई क्वेश्चन पहले नहीं आया, वरना तो आपको आंसर मिल जाता। अकॉर्डिंग टू शिव नादर, द फाउंडर ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज। हाँ शुक्र ये क्वेश्चन पहले नहीं आया, नहीं तो आप तो फटाक से आंसर दे देते। द फाउंडर ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज
the future belongs to the global enterprises which is able to transform itself according to the challenges of global economy. Which characteristic of management is highlighted in the above statement? हो आपको बताना है, शिव नादर जो है फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात कही है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द ग्लोबल एंटरप्राइजेस विच इज एबल टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अब बताओ जी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की जो हाईलाइट हो रही है। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सिलेबस में जो मैनेजमेंट की हैं? कितनी है? कमेंट में डालो, मैं चेक कर लूंगा, घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूं। आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट। 5, गुड, गलत। 6, नहीं। 8, नहीं भाई साहब, नहीं। 7 है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट की। चलिए मैं आपको बता देता हूं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल फोर्स, डायनेमिक फंक्शन। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू शिव नादर, द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, the future belongs to the global enterprises which is able to transform itself according to the challenges of global economy. Which characteristic of management is highlighted in the above statement? चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। हाँ, 7 में से 4 बची, 3 तो गायब ही हो गई, बच गए आप। अगर आप सोच रहे थे कि भैया इंटेंजिबल फोर्स है, वो तो गया, हो सकता है। गोल ओरिएंटेड तो नहीं होगा, गोल ओरिएंटेड तो नहीं होगा। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू शिव नादर, द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द ग्लोबल एंटरप्राइजेस विच इज एबल टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ according to challenges of global economy. The correct answer is dynamic function. हा, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। या जो ग्लोबल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को बदल लेगा उसी को तो डायनेमिक बोलेंगे ना। और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक भी यही है, डायनेमिज्म, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन, राइट, गुड। ये बार बार नीचे क्या देख रहे हो? नीचे मेरा रेफरल कोड चल रहा है भाई, राम आहूजा। हाँ, अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप रेफरल कोड यूज कीजिए, राम आहूजा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। भैया किसको किसको बुरा लगता है डिस्काउंट? एंड डू ज्वाइन द प्लस कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन, ओ हो। कलिंगा मार्ट इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा जी। इट हैज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर in which actual production is in the hands of several artisans and marketing is done by staff at branches, which means constantly providing supervision and motivation to the employees. Find out the function of management discussed above. अरे बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको तो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। एक बार दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को, शायद आपको क्लू मिल जाए, और कमेंट में आंसर कीजिए। पढ़िए, मैं टाइम देता हूं आपको। कलिंगा मार्ट पे टक गया भाई, कंपनी का नाम है, क्यों टेंशन ले रहे हो उसको?
वो XYZ कंपनी होती तब भी यही सेम रहता. Kalinga Mart is a private limited company with several branches all over the country. It has a complex organization structure in which actual production is in the hands of several artisans and marketing is done by staff at branches, which means constantly providing supervision and motivation to the employees. Find out the function of management discussed above. चलिए एक काम तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं. टोटल फंक्शन कितने होते हैं? 5 और ऑप्शन आएंगी 4, तो एक फंक्शन तो गया. हाँ, दैट इज कंट्रोलिंग तो गया, कंट्रोलिंग तो नहीं हो सकता. अब बताइए, इट्स प्लानिंग, इट्स ऑर्गेनाइजिंग, इट इज स्टाफिंग और डायरेक्टिंग. अभी भी कंफ्यूजन आ रही है? चलिए मैं आपको क्लू दे देता हूं एक और. Which means constantly providing supervision and motivation to the employees. हाँ, अब समझ आ गया. अब बिल्कुल आप एकदम एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल आंसर के नजदीक पहुंच गए. 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कौन कौन से होते हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अब समझ आया? मैंने कहा ना, हमेशा हर आंसर का क्लू आपको ऊपर मिल जाएगा. एवरी आंसर हैज ए क्लू. तो हर आंसर का क्लू है, सो डोंट वरी. आराम से आप उस क्लू को ढूंढिए और आपका आंसर आपके पास होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? ऐश्वर्या, ओह, कलिंगा मार्ट. पढ़िए भैया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए. पढ़िए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में. यस लिखिएगा. क्वेश्चन 8, एक्सपेक्टेड आंसर दिस, ताकि पता चले आप कितने अच्छे से देख रहे हैं और कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको कहीं पर, चिंता मत कीजिए. आपके लिए तैयार किए गए हमारी तरफ से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए. प्लीज आंसर इट. Aishwarya is the manager of Kalinga Mart. So is the Nusli Wadia of Bombay Dyeing, Bill Gates of Microsoft, Shiv Nadar of HCL Enterprises, Indra Nui of PepsiCo, and the principal of your school. They all manage organizations, schools, hospitals, shops, and large corporations, or all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something in common. What is that something in common? Options दे दूं? What is that something in common? Management, managers, both of the above or none of the above. डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है भैया, आसानी से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. सोचिए ध्यान से, सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए. लॉक कर दूं? मैनेजमेंट. मुझे पता है सबका आंसर यार होगा मैनेजमेंट इज कॉमन, क्योंकि हम चैप्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं. बुक का सिलेबस मैनेजमेंट है और चैप्टर भी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट ही होना चाहिए, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर. मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स बोथ, दोनों कॉमन है.
जहां मैनेजमेंट है वहां मैनेजर्स हैं, जहां मैनेजर्स है वहां मैनेजमेंट है. हाँ, what is that something in common? It's both of the above, management and managers. Management and managers, right? अच्छे है ना क्वेश्चंस, मजा आ रहा है, राइट? Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process. That is called. तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है. कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? स्टाफिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process, and that is called planning process, management process, scientific process, or controlling process. बताइए जी, बड़े सारे प्रोसेस आ गए अब तो आपके सामने. प्लानिंग प्रोसेस भी हो सकता है, मैनेजमेंट प्रोसेस भी हो सकता है, साइंटिफिक प्रोसेस भी हो सकता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस भी हो सकता है. हाँ भाई, क्वेश्चन कुछ तो टफ आने चाहिए. दम है क्वालिटी में, नहीं? हाँ, सही है, सब आपके लिए है, सब आपके लिए. जी बताएं, कौन सा आंसर लॉक कर दूं? मुझे पता है ऑप्शंस आ रही हैं. ए प्लानिंग, तो बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता. कुछ लोग इसको साइंटिफिक प्रोसेस भी कह रहे होंगे, तो बिना साइंटिफिक के उसके एक्सपेरिमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते. कुछ लोग मैनेजमेंट प्रोसेस कह रहे होंगे, लेकिन करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट प्रोसेस. सर, मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि गोल्स बाय चांस नहीं मिलते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है. आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको प्रोसेस को पूरे को कंप्लीट करना पड़ता है. तब जाकर के आप जो है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस बना पाते हो, गोल्स को अचीव कर पाते हो, एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. This definition is given by which of the following? अरे मुझे तो लगा था बहुत आसान डेफिनेशन है, ये तो कंफ्यूज कर दिया इन्होंने तो. अरे बाप रे बाप, यहां पर आकर तो फंस गए हम लोग. It is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Oh my God! A, B, C, D. सबको लग रहा है डी आंसर होना चाहिए सर, हेनरी फेयोल. नहीं है ना? देखते साथ ही लगता है बस हेनरी फेयोल इज शुड बी द आंसर. हा. बताइए जी, क्या आंसर होना चाहिए? रॉबर्ट रीटनर, हारोल्ड कुन्स और हेनरी फेयोल. मुझे पता है हेनरी फेयोल आपने बहुत नाम सुना होगा सेकंड चैप्टर में ही, तो लगता है वही आंसर होना चाहिए. हाँ, ऑप्शन में लगता है लॉक कर देना चाहिए, बट स्टिल आपको कमेंट में बताना पड़ेगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. प्लीज क्वेश्चन नंबर साथ में डालिए, वरना पता नहीं चल पाएगा आप किसके ऑप्शन बता रहे हैं, 9th वाले की या 11th वाले की, है ना? बताइए, डालिए क्वेश्चन 10, ऑप्शन ए, बी, सी और डी. क्या होगा? फंस गए भैया, जरूरी था फंसना तो. अगर सारे क्वेश्चन प्यार मोहब्बत वाले होंगे तो फायदा क्या हुआ भैया? प्रैक्टिस कैसे होगी बेटा?
गेन कैसे करेंगे नॉलेज, नए नए आंसर्स कैसे पता चलेंगे। और देखिए अगर डिटेल में जाना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स में जाना चाहते हो, रेफर दिस कोड और आ जाओ प्लस कोर्स में। एक एक चीज डिटेल में करेंगे, कंसेप्चुअली करेंगे। नहीं, मन नहीं कर रहा करेक्ट आंसर बताने का। हा 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 हा। अब तो मन कर रहा है, पहले आप बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, लॉक कर दूं करेक्ट आंसर? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज हारोल्ड कून्स एंड हेंस एनरिच। हारोल्ड कून्स एंड हेंस एनरिच ने ये डेफिनेशन दी थी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Aha, good, good, good going. A reminder for you all. Referral code is Ram Ahuja. Just a reminder for you all. Use this referral code Ram Ahuja and get 10% discount. And the subscription fees for 11th and 12th class is 938 rupees per month only. Yes, only. Yeah, if you take subscription for 24 months for class 11th as class and class 12th, you just have to pay 938 rupees per month only. And if you're in 12th class, you have to pay 1125 rupees per month only for 12th month subscription. Right? So use this referral code Ram Ahuja and get 10% straightforward discount for you guys. Good option, na? Yeah. Chali, the next question is, dash means the primary functions or activities that management performs to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Wait, what is this? बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये तो। मुझे लगा ये फंक्शन पूछ रहा होगा, ये तो सारे फंक्शन साथ साथ बता रहे हैं। dash means the primary functions or activities that management performs to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. जी बताइए। देखिए सारे क्वेश्चंस आसान होंगे तो फिर डिफिकल्ट कैसे होगा, फिर मजा कैसे आएगा, दिमाग कैसे चलेगा, नई चीजें लर्न कैसे करोगे आप। हमारा पर्पस है आपको नई चीजें लर्न कराना, बेस को स्ट्रॉन्ग करना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना। तभी हम बोलते हैं कि डू ज्वाइन द प्लस कोर्स, यूज द रेफरल कोड। dash means the primary functions or activities that management performs to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. बता दूं आंसर? चलिए कोई बात नहीं, इतने सारे आंसर्स आपने बताए हैं तो एक मैं भी बता देता हूं आपको। प्रोसेस। देखो सीरीज ऑफ फंक्शंस को ही प्रोसेस बोलते हैं ना। क्लू, प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट हैज टू बी परफॉर्म। और हमने पहले भी कहा था मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। यार एफिशिएंसी तो हो नहीं सकता, इफेक्टिवनेस हो नहीं सकता। हाँ, नन ऑफ दी अबव प्रोसेस में दिक्कत आ सकती थी, बट अगर आपको याद हो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस जिसके अंदर हम सीरीज ऑफ स्टेप्स लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कुछ इस आंसर तक पहुंच भी गए होंगे। तो वेल डन गाइस, जिन्होंने करेक्ट आंसर को ऑप्ट किया, वेल डन, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. It is concerned with the end result. फिर से कंफ्यूजन, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों आते फिल इन द ब्लैंक्स? यस, dash in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals.
It is concerned with the end result. And your options are efficiency, process, effectiveness, and none of the above. लॉक कर दे जी, बता दे जी। चलिए मैं आपको बता देता हूं। effectiveness, doing the right task, achieving the goals, and end result are the clues that tells us about the effectiveness, right? Good. The two terms efficiency and effectiveness are, oh my god, don't worry, I know. Let's see the options. The two terms efficiency and effectiveness are same and interrelated, different and interrelated, same but not related, and different but not related. Arey baap re baap. What a confusion there is. The two terms efficiency and effectiveness are same and interrelated, different and interrelated, same but not related, different but not related. कंफ्यूज हो गए? हाँ, एफिशिएंसी को बहुत पढ़ा, इफेक्टिवनेस को बहुत पढ़ा। अब बताइए दोनों के अंदर में क्या रिलेशन है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए नीचे, लिखिए क्वेश्चन 13 ऑप्शन जो भी आपने चूज किया है, ताकि हम भी चेक कर सके कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने कितने करेक्ट आंसर दिए। एंड मे बी यू आर द वन हु इज गिविंग द राइट आंसर एवरी टाइम। आपके आंसर सारे चेक किए जाएंगे कमेंट बॉक्स में, वी विल चेक इट। बताइए जी। द टू टर्म्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर ए same and interrelated, B different and interrelated, C same but not related, and D different but not related. चलिए जी आपके लिए द्वार खोल देते हैं। डिफरेंट एंड इंटररिलेटेड, अगर हम दोनों टर्म को देखें, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोथ आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, राइट? तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हालांकि दोनों सिक्के के पहलू अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कॉइन्स के हैं बेटा। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट एंड इंटररिलेटेड। Oh, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of the Cane Society of India is to impart education to the children with special needs. Find out the characteristic of management discussed in the above lines. Oh ho 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 ho. तो characteristics of management कौन कौन सी है? Can you repeat? मेरे साथ कीजिए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हाँ जी बोलिए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल फोर्स एंड डायनामिक फंक्शन। अब कितनी हो गई? 7। अब 7 में से 3 गायब कर देते हैं आपकी हेल्प के लिए, बच गई 4। ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और डायनेमिक फंक्शन। अब चूज कीजिए। अब तो आसान हो गया। नाउ इट्स लिटिल बिट इजी फॉर यू। द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स, बट द गोल ऑफ द केन सोसाइटी ऑफ इंडिया is to impart education to children with special needs. Find out the characteristic of management discussed in above lines. All pervasive, multi-dimensional, goal oriented process or dynamic function.
बताइए किसको लॉक करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड योर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए हम भी तो देखिए कितने क्वेश्चन आसान थे, कितने टफ थे। कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको आसान लगा? मुझे मालूम है आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि सबका अपना एक गोल होता है। अगर एक रिटेल स्टोर है उसका गोल है कि सेल्स को इंक्रीज करना, और अगर एक सोसाइटी है तो उसका गोल है एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी गोल को फोकस करती हुई ऑर्गेनाइजेशन होती है। दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये कौन सा क्वेश्चन है? अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। या Jack Welch was appointed as CEO of General Electric Company in 1981. At that time, firm had a market capitalization of $13 billion. Oh my God! 1981 में $13 billion market capitalization था. In 2000, when he stepped down, the firm's turnover had increased multifold to $500 billion. My God! What could be the possible secret of Jack's success? भाई हमें क्या पता जैक ने क्या किया, हमें क्या पता। जैक कम बैक, जैक कम बैक। कुछ याद आया आपको? गेस वर्क। जैक वॉज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। चलिए मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, आपको बताना है पॉसिबल सीक्रेट क्या था। क्रिएशन ऑफ ए विजन, फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज, इन्वॉल्विंग एवरीवन और ऑल ऑफ द अबव। सोचिए, समझिए और बताइए। Jack Welch was appointed as CEO of General Electric Company in 1981. At that time, firm had a market capitalization of $13 billion. In 2000, when he stepped down, the firm's turnover had increased multifold to $500 billion. What could be the possible secret of Jack's success? A. Creation of a vision. B. Focus on strategic issues. C. Involving everyone. Or D. All of the above. मुझे पता है सबसे आसान आंसर कौन सा लगता है। जब हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव लिखा हुआ आता है तो करेक्ट आंसर हमें क्या लगता है? ऑल ऑफ दी अबव। आई न्यू इट, मुझे मालूम था सारे लोग यही ऑप्ट करते हैं, और लकीली हम कह सकते हैं ये आंसर 99% करेक्ट होता है। तो यू हैव ए करेक्ट आंसर। इतने टफ क्वेश्चन में भी करेक्ट आंसर किया आपने, गुड। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड and assigns the means to achieve it. Name the dimension of management discussed above. It is management of people, management of operations, management of places or management of work. मल्टी डायमेंशनल होता है ना मैनेजमेंट, तो बताइए कौन सी डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। Name the dimension of management discussed above. Management of people, management of operations, management of places or management of work. इसलिए मैं बोलता हूं कि आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए। अगर आपने सारी डायमेंशंस नहीं पढ़ी है मैनेजमेंट की और सिर्फ आपने ये याद कर लिया कि मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, तो काम नहीं चलेगा। देखिए 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेस तो गया, अब 3 में से एक बतानी है। नहीं, अब जाके पढ़िएगा जरूर। इट्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वैसे भी देखो ऊपर लिखा मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स वर्क। वर्क को क्या करता है? गोल्स की शेप दे देता है और उस गोल को अचीव करने का रास्ता बताता है। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये भी क्लू था आपके पास में, आप इसको यूज कर सकते थे।
Which of the following statement is not correct? Management of people implies A, B, C, D. थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है. आई होप आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे. प्लीज डू दिस. Which of the following statement is not correct? Management of people implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior, dealing with individuals as a group of people, both of the above or none of the above. ये तो टीड़ी खीर है, खानी तो पड़ेगी आपको. Which of the following statement is not correct? In fact, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. डीलिंग विद एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर एंड डीलिंग विद इंडिविजुअल एज ए ग्रुप ऑफ पीपल. बिल्कुल ठीक, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और क्वेश्चन पूछता है कौन सी करेक्ट नहीं है. आंसर इज नन ऑफ द अबव. दैट मीन्स बोथ द अबव स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट. Management of people implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior and dealing with individuals as a group of people. See, next question before you is, the task of management is to make people work towards achieving the organization's goal by making their, ये इजी है ना. चलिए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं. बताइए बताइए. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. The task of management is to make people work towards achieving the organization's goals by making their strength and weakness effective, strength and weakness irrelevant, strength effective and weakness irrelevant, strength irrelevant and weakness effective. बहुत 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 इजी क्वेश्चन है. नहीं समझ आया? बेटा, हमेशा हम स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं और वीकनेस को इररिलेवेंट, वीकनेस को कम करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेंथ को और ज्यादा इफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं. उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट. The process of management is a series of dash functions. अरे ये क्या है? The process of management is a series of dash functions, continuous functions, composite functions, separate functions, continuous, composite, but separate functions. The process of management is a series of dash functions. It is continuous, composite, but separate functions. Continuous भी है, composite भी है, लेकिन separate है. Planning is different from organizing, लेकिन वो साथ साथ चलते हैं. Composite भी है, एक दूसरे से overlap भी करते हैं, लेकिन function separate है. The last question before you guys. To remain in the industry, management must exploit fully the progress potential of the organization. Dash can be measured in terms of increase in sales volume, in the number of employees, the number of products, or the increase in capital investment, etc. Difficult है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार. To remain in the industry, management must exploit fully
the progress potential of the organization. Dash can be measured in terms of the increase in sales volume, in the number of employees, the number of products, or the increase in capital investment, etc. It's survival, profit, growth. बहुत इजी क्वेश्चन है ऑप्शन के बाद में. किसको मेजर कर सकते हैं हम लोग? इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. इज इट सर्वाइवल, इज इट प्रॉफिट, इज इट ग्रोथ, और ऑल ऑफ द अबव? देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन. डैश से पढ़ना शुरू कीजिए. डैश कैन बी मेजर्ड. एक एक वर्ड को रख के देखिए. पहले सर्वाइवल को रख के देखिए. सर्वाइवल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स. फिर प्रॉफिट को रख के देखिए. फिर ग्रोथ को रख के देखिए. क्या तीनों आ सकते हैं? सोचिए. बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. वहां से क्वेश्चन लिया गया है. तो आप जरूर इसको कर पाएंगे. थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सोचिए, एक एक ऑप्शन को रखकर देखिए. सर्वाइवल की बात करो, प्रॉफिट की बात करो, ग्रोथ की बात करो. ध्यान से देखिए. कर लिया? आपको क्या लग रहा है? सर्वाइवल? आई नो, कुछ को सर्वाइवल लग रहा है, कुछ को प्रॉफिट लग रहा है, कुछ को ग्रोथ लग रहा है. एंड आंसर इज ग्रोथ. क्योंकि ग्रोथ ही है जो इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम से नापी जाती है. ग्रोथ ही है जो, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होते हैं तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई. जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई. जब सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई. तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा. आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप जरूर कीजिए, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस, सारे कोर्सेज की, स्पेशल क्लासेस की आप तक पहुंचती रहे. डू ज्वाइन द प्लस कोर्स एंड यूज दिस रेफरल कोड राम आहूजा एंड गेट 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट. थैंक यू सो मच गाइस. See you all in the next session, the next topic. Bye bye. Take care. See you.